learners. How are you all? I hope you all must be going very well. Today we are back here with our new session of class 5th, and the chapter number is 7, that is about force, work and energy. Okay, so today we are going to learn these three basic concepts of what force, work and energy, which we use commonly in our day-to-day activities or in our daily lives. Okay, let's start the chapter. See, first of all, they have given you an activity to do, and what you have to do in this, that write push or pull for the following activities. So students, यहाँ पे कुछ activities आपको given है, and आपको इनको देखकर ये बताना है कि इन activities को करने के लिए what we have to apply, either push or a pull. Okay, so students, to move anything in the forward direction, किसी भी एक चीज को forward direction में move करने के लिए जो आप force apply करते हैं like this, that is known as what? Push. Okay, एंड किसी चीज को अपने साथ का कैरी करने के लिए या फिर आप उसमें आगे की तरफ अपनी तरफ जब आप फोर्स लगाते हो, दैट इज नोन एज पुल. सो यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर व्हाट दे आर सेइंग इज कि यहाँ पे एक मैन है जो क्या कर रहे हैं, इस रोलर को आगे करने के लिए क्या एक पुश अप्लाई कर रहे हैं. सो विल राइट ओवर हियर व्हाट पुश. ओके, देन ओवर हियर व्हाट ही इज डूइंग, ही इज अप्लाइंग अ फोर्स व्हिच इज नोन एज पुल. Then again, over here, this boy is what? He is opening up a door. So, this door ko open karne ke liye what he has done? He has applied a force which is known as pull. And over here, this girl is applying a force which is known as push. Okay? So, now let's move further. Imagine you are pulling a chair toward yourself or pushing a ball to move. Every day we perform so many actions that involve pushing and pulling. And we already know that force energy is applied for these actions. Machines make such actions easier and faster. So let's get on and read the given chapter to know more about these interesting phenomena and simple machine. So student, what they're saying कि imagine करने को बोला है कि आप क्या कर रहे हो, एक चेयर को अपनी तरफ क्या you are pulling it, अपनी तरफ खींच रहे हो एक चेयर को, या फिर एक बॉल को आप पुश करते हो to move, right? तो हर रोज हम इतने सारे एक्शंस परफॉर्म करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं हम या तो पुश अप्लाई कर रहे हैं या फिर पुल. ओके, एंड हमें ऑलरेडी ये बात पता है कि फोर्स एंड एनर्जी जो है इन सभी एक्शंस के लिए अप्लाई किए जाते हैं. जैसे कि मशीन्स हैं, इफ यू यूज मशीन्स तो मशीन इन एक्शंस को और भी ज्यादा इजी एंड फास्टर बना देती हैं. तो इस चैप्टर में अब हम वही इंटरेस्टिंग फिनोमेना एंड सिंपल मशीन्स के बारे में लर्न करेंगे. सो वी हैव द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज ऑफ फोर्स. The force in simple words means a push or a pull. We very well know that. What they're saying is simple words में एक push या pull. आप push कर रहे हो किसी भी object को और you are pulling it towards yourself. That is simply a force. Okay? While pushing an object, जब हम एक object को pull करते हैं या फिर push करते हैं, for that we apply what? Force. Right? एक object को आप push करेंगे अपने से दूर तो भी हम क्या कर रहे हैं इस condition में? We are applying the force only. Okay, see, a force is used to move a stationary object. एक force को use किया जाता है stationary object को move करने के लिए. To stop a moving object, एक already moving object को stop करने के लिए भी हम force apply करते हैं. Then make a moving object move faster. एक already moving object है and उसकी speed को increase करना है, और if you want to decrease it also, okay, to slow down also a moving object, we apply force. चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं. एंड ऑल्सो टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को भी चेंज करने के लिए वी अप्लाई फोर्स ओनली. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स और द यूजेस ऑफ फोर्स. नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स. सो कितने टाइप्स के? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. नंबर 1, दे हैव गिवन यू मस्कुलर फोर्स. सी, व्हेन वी पुश, पुल और लिफ्ट समथिंग वी अप्लाई मस्कुलर फोर्स. जब आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पुश करते हो और यू पुल इट और यू लिफ्ट इट, देन यू अप्लाई द फोर्स बाय योर मसल्स एंड दैट इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. Then next we have mechanical force. Most simple machine make use of mechanical force. So mechanical force is the force applied by the machines. Okay, machines जिस force का use करती हैं, that is known as mechanical force. And mostly सभी machine जितनी भी simple machines हैं, वो सभी mechanical force का use करती हैं. Example, a pair of scissors. Okay, एक scissors का pair भी mechanical force का use करता है to cut something.
Then third type of force which we have is gravitational force. So in television you must have seen astronauts floating in space. Okay, आपने television पे देखा होगा astronauts जो हैं space पे जाके क्या करते हैं, float कर सकते हैं. Okay, so why they are able to float over there? How? कैसे वो space में float कर सकते हैं? Because there is no gravitational force pulling them down. Actual में space पे students कोई भी gravitational force present नहीं होता जो उन्हें नीचे की तरफ pull करेगा. And that is the reason that astronauts floats in the space. Okay, we are able to stay on the ground because of gravitational force. हम अपने ground level पे ही stay करते हैं, रुके रहते हैं, खड़े रहते हैं. We do not flow on the earth. Why? Because of the gravitational force exerted by the earth. Then, next type of force which we have is frictional force. See, so why does a rolling ball stop after some time? एक rolling ball है, वो रोल करते करते कुछ टाइम बाद अपने आप स्टॉप हो जाती है. Why? Because of force of friction. किसकी वजह से? Force of friction की वजह से. Actual में students, what does a friction force do? It slows down a moving object. पहले ये क्या करता है? Friction force किसी भी एक moving object की speed को slow down करता है and eventually फिर वो object क्या होता है? Rest पे आ जाता है. So we are able to walk because of friction force. And आप अगर ground पे walk भी कर रहे हैं, that is because of the frictional force only. Then next we have elastic force. A stretched rubber band regains its original position on being released because of elastic force. Elastic force arises when a body deforms. Okay. So एक rubber band है, when you stretch it, जब आप उसे stretch करते हो and then you release it. Okay, उसको बाद आप उसे जैसे release करोगे तो वो अपने आप अपनी खुद की जो original size था, position थी या उसकी जो shape थी, it will regain it. Why? Because of elastic force. Okay. So elastic force कब आपका अराइज होता है? जब एक बॉडी की शेप डिफॉर्म हो जाती है. देन यू से दैट द इलास्टिक फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ओके, so these were the different types of forces and also the concept of force. Now next we come to the topic that is about simple machines. So a simple machine is a small and simple tool which makes our work easier and faster. ठीक है, एक स्मॉल एंड एक सिंपल सा टूल जो हमारे वर्क को इजी एंड फास्टर बनाता है, दैट इज नोन एज सिंपल मशीन. ओके, सी, it makes the work easier by applying force at a convenient point which either changes the direction of force or increases the force applied. Okay, तो सिंपल मशीन क्या करता है? सिंपल मशीन हमारे वर्क को इजी बनाती है. कैसे? एक कन्वीनियंट पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं. जब आप एक कन्वीनियंट पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स की वजह से जब उस फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है या फिर जो आपने फोर्स अप्लाई किया है उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है. ओके, इस तरीके से क्या वर्क हमारा इजी होता है बाय द यूज ऑफ सिंपल मशीन. So we have different types of simple machine like lever, inclined plane, pulley, wheel and axle, screw and wedge. These are all simple machines. You can see in their picture also, this is a lever, okay, inclined plane, pulley, screw and wedge. Now let us discuss all of these simple machines one by one. So first of all, we have lever. We have often seen people opening a soft drink bottle using a bottle opener or a worker lifting a heavy object using a rigid rod. So the bottle opener and the rod are examples of a lever. Still what they're saying, जैसे कि आपने देखा होगा हम एक सॉफ्ट ड्रिंक के जो जब हम एक सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल को ओपन करते हैं, सो फॉर ओपनिंग इट व्हाट वी यूज, उसके ओपनर को जो बॉटल ओपनर होता है हम उसका यूज करते हैं उस सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल को ओपन करने के लिए, राइट. इसी तरीके से आपको अगर एक हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है तो आप उसके लिए एक रिजिड रॉड का यूज करते हैं. तो ये सभी क्या है? यहाँ पे एक बॉटल ओपनर है या ये रिजिड रॉड है, ये सभी एक तरीके के एग्जाम्पल्स है लीवर के. व्हाट इज अ लीवर? लीवर इज अ सिंपल मशीन दैट हेल्प अस टू डू वर्क व्हाइल अप्लाइंग लेस फोर्स. एक ऐसी सिंपल मशीन जहाँ पे आप अपने वर्क को इजिली कर सकते हैं बाय अप्लाइंग लेस फोर्स, यानी कि फोर्स अप्लाई करना है लेकिन ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है बाय द यूज ऑफ लीवर, राइट. सी, तो लीवर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. लीवर के स्टूडेंट्स बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं. नंबर 1, फलक्रम. फलक्रम क्या है? इट इज अ मेन पॉइंट वेयर द रॉड इज फिक्स. ओके, एक वो मेन पॉइंट जहाँ पे वो रॉड फिक्स होती है, दैट इज नोन एज फलक्रम. सेकंड, यू हैव लोड. लोड इज अ वेट दैट इज टू बी लिफ्टेड और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो वेट जिसको आप मूव करना चाहते हैं या लिफ्ट करना चाहते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? लोड.
एंड नेक्स्ट वी हैव एफर्ट. एफर्ट वो फोर्स है जो हम उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, मूव करने के लिए अप्लाई करते हैं. दैट इज नोन एज एफर्ट. ओके, so the positions of the fulcrum, load and effort are different in different types of lever. अब ये fulcrum, load and effort तीनों की पोजीशन जो है डिफरेंट होती है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवर. एंड इनकी पोजीशन के बेसिस पर ही हम लीवर्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. दैट इज फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर. Let us discuss all of them one by one. First of all, we have first class lever. So first class lever में students fulcrum की position between the load and effort होती है. Okay, like this you can see ये fulcrum आपका middle में है, load and effort आपके side में है. Such type of lever is known as first class lever. Example: pliers, scissors and nail cutter. These are examples of first class lever. Then we have second class lever. सेकेंड क्लास लीवर में स्टूडेंट्स लोड विल बी इन द बिटवीन, लोड बिटवीन यानी कि बीच में होगा, एंड फुलक्रम एंड एफर्ट विल बी इन द साइडवेज. सच टाइप ऑफ लीवर इज नोन एज सेकेंड क्लास लीवर. एग्जांपल: बॉटल ओपनर, नट क्रैकर, एक्सेट्रा. ओके, देन वी हैव थर्ड क्लास लीवर. थर्ड क्लास लीवर में स्टूडेंट्स एफर्ट विल बी इन द बिटवीन, मींस व्हाट, फुलक्रम एंड लोड दोनों साइड्स में होंगे, एंड जब एफर्ट बीच में लगाया जा रहा है, such type of lever is known as third class lever. Example: ice tong, tweezers and fishing rods. These are the examples of third class lever. Okay, now next simple type of machine which we have is inclined plane. See, you must have seen the ramp in school. आपने देखे होंगे अपने स्कूल, हॉस्पिटल्स या अदर बिल्डिंग्स में आपने रैम्प जरूर देखे होंगे, राइट? सी रैम्प क्या होता है? रैम्प आर द इजी वे, एक इजी वे होता है जिसके थ्रू हम एक व्हीकल को या व्हील चेयर को बिल्डिंग में ऊपर की तरफ क्या कर सकते हैं, इजीली ड्राइव कर सकते हैं, है ना? इस टाइप के रैम्प को, इजी वेज को हम इंक्लाइन प्लेन कहते हैं. सच टाइप ऑफ स्लोप्स आर कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन्स. तो इंक्लाइन प्लेन एक स्लोपिंग सरफेस है जो क्या करता है, एक लोड को लिफ्ट करने के लिए अप्लाई किए जाने वाले एफर्ट या फोर्स को रिड्यूस कर देता है, राइट? The inclined plane and rollers were used in building the pyramids in Egypt. Actual में इन inclined plane and rollers का जो यूज था वो इजिप्ट में पिरामिड्स को बनाने के लिए यूज किया जाता था. ओके, रैम ओवर 1 माइल, 1 माइल पे जो रैम थे वो क्या इतने लॉन्ग थे कि उनको आप यूज करते थे अराउंड 2.5 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स को मूव करने के लिए, जिनका वेट अप टू 70 टन ईच तक होता था. ओके, सो आप इतने ज्यादा हेवी लोड को बहुत इजीली लिफ्ट अप कर सकते थे बाय यूजिंग द इंक्लाइन प्लेन. देन नेक्स्ट वी हैव पुली. पुली इज अगेन अ सिंपल मशीन, राइट? जिसमें एक व्हील होता है एंड अ ग्रूव. ठीक है, एक व्हील जिस पे ग्रूव होगा उसे आप पुली कहते हैं, एंड इस ग्रूव के थ्रू एक रोप को होल्ड किया जाता है, एंड देन वी कैन इजीली लिफ्ट अप द ऑब्जेक्ट्स. ओके, मेजरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पुलीज, दैट इज फिक्स्ड पुली एंड अदर इज मूवेबल पुली. So first of all we have fixed pulley. The fixed pulley is used to change the direction of the load. Load की direction को change करने के लिए जो use किया जाता है, that is fixed pulley. Example: the pulley which we use for drawing out water from the well. कुएं से पानी निकालने के लिए, वेल से पानी निकालने के लिए भी पुलीज का यूज किया जाता है, and that is known as fixed pulley. Okay, you can see over here. यहाँ पे क्या है, आपका जो ये लोड की डायरेक्शन है ना, इससे आप इसे यूज कर सकते हो. यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है पुली फिक्स्ड होती है. देन वी हैव मूवेबल पुली. इट इज यूज्ड टू डू वर्क बाय मूविंग द लोड. अब यहाँ पे मूवेबल पुली में आप लोड को क्या कर सकते हो, इजीली मूव कर सकते हो, एंड देन यू कैन डू योर वर्क. एक ऐसी पुली जिसमें अपने वर्क को, लोड को मूव करके करते हैं. ओके, कंस्ट्रक्शन क्रेन्स, मॉडर्न एलिवेटर्स, ये सभी मूवेबल पुली के एग्जाम्पल्स है, राइट? Now fixed pulley and a movable pulley. Fixed pulley and movable pulley दोनों को together यानी कि एक साथ हम लोड्स को लिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं. The next type of simple machine which we have is wheel and axle. Okay? See, so have you ever ridden on a Ferris wheel? It is a giant wheel going around a small rod, right? अगर हम Ferris wheel की बात करें तो Ferris wheel एक बड़ी सी व्हील है जो एक छोटी सी रॉड पे घूमती रहती है. ओके, सो यहाँ पे जो रॉड है स्टूडेंट, दैट इज एक्सिल, एंड बाय पुटिंग फोर्स यानी कि फोर्स अप्लाई करके उस जॉइंट व्हील पे वो आपकी जो रॉड है वो मूव करती है, राइट? दिस इज द व्हील एंड एक्सिल अरेंजमेंट, एंड ये आपका एक व्हील एंड एक्सिल अरेंजमेंट होता है.
सिमिलरली इसी तरीके से व्हेन वी रोटेट द हैंडल ऑफ अ स्क्रू ड्राइवर, जब आप एक स्क्रू ड्राइवर के हैंडल को रोटेट करते हो तो वहां पे जो व्हील एंड है एंड जो शाफ्ट है, ठीक है, इट बिकम्स अ व्हील, यानी कि स्क्रू ड्राइवर को जब आप मूव करते हो स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे व्हील बन जाता है एंड जो शाफ्ट है वो एक एक्सिल बन जाता है जिसके थ्रू हम स्क्रू को इजिली टर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्क्रू। व्हाट इज स्क्रू? स्क्रू इज अ सिंपल मशीन, एक ऐसी सिंपल मशीन जिससे हम दो चीजों को एक साथ ही होल्ड करके रख सकते हैं, दैट इज नोन एज स्क्रू। ओके, स्क्रू रिजेंबल्स अ नेल, स्क्रू एक नेल की तरह दिखता है जिसके ऊपर ग्रूव्स होते हैं। इनफैक्ट ये एक इंक्लाइन प्लेन है जो एक रॉड के अराउंड रैप्ड होती है। ओके, स्क्रू एंड स्क्रू जैक, स्क्रू एंड स्क्रू जैक जो है वो इसी टाइप के सिंपल मशीन के एग्जांपल्स है। Next, we have wedge. Wedge consists of two inclined planes joined back to back with a sharp edge. Okay, wedge के अंदर क्या दो inclined plane होते हैं जिन्हें आप इस तरीके से back to back join करते हैं और उसकी एक edge जो है वो sharp होती है। Okay, so wedge के अंदर स्टूडेंट दो तरीके के ends होते हैं। एक end जो है wedge का वो blunt होता है और दूसरा sharp end होता है। And wedge के थ्रू हम object को split या cut कर सकते हैं। Example, X, knife, shaving razor, ये सभी examples है of wedge. Okay, all big machines. Now all the big machines are combination of some of these simple machines. जितनी भी बड़ी बड़ी machines है वो सभी क्या है इन simple machines के combination से बनाई जाती है. Okay, and in big machines को what we call them compound machines. Okay, so these were the different types of simple machines which we have discussed over here. Now next we come to the topic that is about energy. Okay, so we have often heard our moms asking us to eat this or that so we get more energy. What exactly is energy? So energy is the ability to do work. What is energy, students? The ability to do work. किसी भी work को करने की जो ability होती है, that is known as energy. Okay, चाहे वो आपकी sunlight हो, wind, water, plants and animals. Okay, इन सभी में energy जो है हमारे nature में present है. एनर्जी इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब एनर्जी जो है डिफरेंट फॉर्म्स से प्रेजेंट है। ओके, काफी सारी फॉर्म्स है लेकिन हम यहाँ पे हम कुछ ही डिस्कस करने वाले हैं। नंबर वन, वी हैव लाइट एनर्जी। लाइट इज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी थ्रू स्पेस। ओके, लाइट क्या है? लाइट नेचर का तरीका है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं एनर्जी, यानी कि स्पेस से एनर्जी जो हमारे नेचर में ट्रांसफर करी जाती है, इस नेचुरल वे को कहते हैं लाइट एनर्जी। Okay, example, sun, bulb, tube light, burning candle, all these are forms of light energy. Next we have heat energy. Heat is also a form of energy. Heat भी एक energy की form है. Okay, और हम इसको काफी सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, like warming our homes, अपने घर को warm up करने के लिए, for cooking the food. Okay, and most of the energy, ज्यादातर जो heat energy हम यूज करते हैं वो हमें कहाँ से मिलती है? From burning fuels. Fuels को burn करके, like coal, kerosene and petrol. Okay, then next we have solar energy. Okay, तो solar energy जो है सबसे important source of energy है because it is non polluting, right? We hang our clothes, जैसे कि हम अपने clothes को hang करते हैं so that वो sunlight will dry हो जाए, right? इस तरीके से हम solar cells का use करते हैं sun के energy को electricity में convert करने के लिए. These all are the forms of solar energy. Then next we have mechanical energy. Mechanical energy is the energy which is possessed by an object due to its position or due to its motion. Okay, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जो एनर्जी पोजेस करी जाती है उसकी पोजीशन की वजह से या फिर उसकी मोशन की वजह से, दैट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. सो मैकेनिकल एनर्जी मेजरली इज ऑफ टू टाइप, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जो मोशन के थ्रू आती है, एंड नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी. And potential energy is the stored energy of position. Position की वजह से जो energy stored होती है, that is known as potential energy. And motion की वजह से जो energy arise होती है, that is known as kinetic energy. And kinetic energy, and potential energy, both are the types of mechanical energy. Like a moving car, एक moving car है, उसके अंदर कौन सी मैकेनिकल एनर्जी होगी, और वो भी कौन सी, क्योंकि उसके अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो मोशन की वजह से प्रोड्यूस होगी. सो वी कैन से दैट इट possesses a kinetic energy. Okay, now next we have hydropower, that is water energy. Okay, so of the renewable energy resources that generate electricity, hydropower is the most often used. जितने भी renewable energy resources है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा सकती है, उन सभी में से हाइड्रो पावर सबसे ज्यादा यूज होने वाली एनर्जी है.
ओके, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसको हमने थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि कई हजारों साल पहले हम इसे यूज कर चुके हैं एक पैडल व्हील को टर्न करने के लिए, सो दैट वी कैन ग्राइंड द ग्रेन्स। ओके, एंड बिकॉज द सोर्स ऑफ हाइड्रो पावर इज वाटर, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो पावर एनर्जी का जो सोर्स है दैट इज वाटर, सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है उन्हें एक वाटर सोर्स के पास ही लोकेट करना जरूरी होता है। Then we have electric energy. So electrical energy is the movement of electrical charges. Electrical charges के movement को कहा जाता है electric energy. And electric energy जो आपकी wire के through, okay, electric charges जो wire के through move करते हैं, that is called electricity. Okay, so most of the appliances which we use these days, like washing machine, television, computer, tube lights, bulb, fan, they all run on electricity. Okay. And the last type of energy which we have is sound energy. Sound is vibration transmitted through a solid, liquid or gas. Okay, एक ऐसे vibrations जो आप किसी भी solid, liquid या gas के through transmit करते हो, that is known as sound energy. तो sound कब produce होती है? When a force causes an object or a substance to vibrate. ठीक है, जब किसी भी एक force के through एक object या एक substance vibrate होता है, तब वहाँ पे sound energy produce होती है. There are some sources of sound energy like music system, musical instrument, radios. All these are the forms of sound energy. Okay, that's all for the chapter. It's completed over here. We have discussed about the different types of forces, different types of simple machine, and also the concept of energy with various its form. Okay, that's all for today. Let's meet in the next class with a new chapter. Till then, keep going well, and thanks to everyone.